गुड मॉर्निंग टीम। यहाँ पे आज हम पावर क्वेरी का डेमो देखने वाले हैं। ठीक है, तो पावर क्वेरी का डेमो देखने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आपको पावर क्वेरी के बारे में क्या पता है। तो पहले आप पावर क्वेरी के बारे में एक एक करके बताओ। और अभी हम कम लोग हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो। रमेश, राजीव, राज। ठीक है, तो रमेश से स्टार्ट करते हैं। रमेश, और रमेश, इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओ कि आपने इसी से पहले कोई कोर्स किया है, ट्रेनर का नाम भी बता सकते हो, और जो है पावर क्वेरी में क्या जानते हो वो। ठीक है, ये सारी चीजें बताओ। Okay, चलो। so this is Ramesh Gurung. I never attended this Power Query score before. This is my first time, and this Power Query mainly used in financial planning and analysis most of the cases. So nowadays, Power Query is a very demanded. So I came to know, then I thought to do this course. Thank you. ओके रमेश, थैंक्स रमेश। एनी प्रीवियस कोर्सेज? आई थिंक एक्सेल यू हैव डन। एनी अदर कोर्सेज? Yes, no, no. नो। ओके ओके, एंड एक्सेल आल्सो आई थिंक 2 years back, राइट? 2 years back you have done. Yes, yes, yes. परफेक्ट रमेश, थैंक यू रमेश। ओके राजीव, आपके पास आते हैं, आप बताओ अपने बारे में। Yes, sir. So Rajiv, currently working with a company named BNY, and पहले AFC के साथ I completed Excel वाला class, and my teacher was Rakesh sir, राकेश, अच्छा। and I recently completed it. हम्म, पावर क्वेरी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट बस सुना है कि इट्स यूज्ड एज अ डेटा सिमुलेशन, डेटा मॉडलिंग, काफ़ी सारे सोर्सेस के साथ यू कैन कंबाइन डेटा, यू कैन एनालाइज इट, तो काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, एंड इट्स अ गुड अपस्किल, इट्स अ गुड स्किल टू काइंड ऑफ use and upskill yourself in the industry. So इसीलिए मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट राजीव। तो राजीव, ये जो स्किल सेट आप लेने वाले हो ना, ये मैं कहूँगा एक हिडन स्किल सेट है। जिनको भी पता है वो बहुत फायदा उठा रहे हैं इसका। क्यों हिडन है? क्योंकि ना ये पावर बीआई में छुप जाता है पीछे, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये एक्सेल पे भी है पीछे बैकग्राउंड में, और ये बहुत अच्छे अच्छे ऑटोमेशन करता है। ठीक है, तो आज हम उसमें डेमो में देखेंगे इस चीज को। ठीक है। हाँ, ठीक है राजकुमार, आप बताओ अपने बारे में सभी को थोड़ा सा। हेलो राजकुमार। Hi, yeah. Hi, sir. Hi, team. Myself, Raj. I'm from Hyderabad. So I'm working as a MIS analyst in one of the MNC company in Hyderabad. So I want to learn this. So to learn this, reason is I want to do some automations using of the Power Query. I know, and I learn. I'm simultaneously I'm learning SQL also. So this is useful to my work. So the reason I joined here, and one of my friends suggested to join in this institution. That's it, sir. ओके, व्हाट्स द फ्रेंड नेम? Sir Kiran Patil, sir. किरण पाटिल। Patil. He's from Pune, so he's also learned from your institution. So किरण he's किरण senior. किरण Kiran Patil. किरण पाटिल इज ओके, शी इज नॉट अ फीमेल, राइट? किरण मेल है, राइट? Kiran Patil. Oh, no, he's male. मेल है ना? अच्छा, किरण Yeah. पाटिल। अच्छा अच्छा। ओके, सो राज, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, इंग्लिश, हिंदी आल्सो, राइट? Yeah, Hindi also, but if you are telling English, that will be English will be better for you, right? yeah. So what we'll do, Raj, here, so Hmm. there are 2-3 people more who are not comfortable in Hindi. Okay, for Uh-huh. our query batch. So there the batch will go, we will conduct the batch in English only, okay? Mm-hmm. Okay, demo will be mixed thing, English, Hindi, both, Mm-hmm. but Mm-hmm. definitely the batch will happen in English. Yeah, sure. Okay. Perfect. So now Thank you. team, let's move and see what is Power Query. As you have little idea, so let's see, and let's do some examples also. Let's see, let's go here. ठीक है. So team, Power Query. So what will be the course name? Practical application of Excel, Power Query and Power Pivot. So means nothing will be PPT based, everything will be practical. Same like Excel, same like other courses. ठीक है ना Ramesh? So whatever doubt you will have, okay, we will just pick the system, we will start doing it here only.
कोई भी ऐसा नहीं होगा that we are telling you okay it can be done like this that like that. So we'll just open the system and do in front of you like this. It will happen. Okay. So now practical. So Power Query team. Hello, hi Sunny. सनी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सनी, आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हटाना। फर्स्ट बटन देखो, नीचे से फर्स्ट बटन म्यूट पे है। ठीक है, चलो सनी से बात नहीं हो पा रही, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टीम पावर क्वेरी इज अ ETL टूल। मींस ETL का मतलब क्या है? ETL का मतलब है एक्सट्रैक्ट। ओके, या सनी यू आर सेइंग समथिंग? सनी कौन कह रहा है? कोई No, sir, Raj. Yeah. ओके। So team Power Query is a ETL tool. Means here you can do extraction from any source. Maybe 90 plus data sources you can connect the system. Which system? As this Power Query is in Excel as well as in Power BI. So mainly here we will see the Excel part. The same thing, same window, same UI you will find in Power BI also. Okay. So that is the reason team the Power BI is very strong. ये जो पावर BI दिख रहा है ना, इतना बहुत बूम पे है, हर कंपनी यूज कर रही है। सो द 50% क्रेडिट गोज टू पावर क्वेरी। ये नहीं होता तो पावर BI इतना अच्छा नहीं होता टीम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे जो ऑटोमेशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी हो रहा है ना वो सब कुछ। यानी इफ एनीवन इज नोइंग पावर BI टीम एंड ही डोंट नो पावर क्वेरी, वी कैन से ओनली 50% नॉलेज ही इज हैविंग। और पावर क्वेरी का नॉर्मल ऑप्शन कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं आता उसको। ठीक है, तो पावर क्वेरी डिटेल में देखने लायक चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड टूल है ये, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड टूल। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या था टीम, दिस वाज this is not a new thing. Okay, so this was introduced in Excel on 2010 it was introduced। 2010 से ये है अपने पास। ठीक है, लेकिन ये क्या होता था, एक्सेल का पार्ट नहीं होता था कभी भी, एक्सेल का पार्ट। दिस वाज लाइक एन एड इन। So suppose you wanted to add, it will not show in the main menu, यहाँ पे नहीं दिखता था वो। ये जो मेन्यूज होते हैं ना एक्सेल में जो मेन्यूज होते हैं ऊपर, ये इसमें नहीं दिखता था वो। अगर आपको लाना है ना तो आपको बाहर से आपको एक एड इन डाउनलोड करना पड़ता था, फिर वो एड इन इम्पोर्ट करना पड़ता था। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इतना सही था टीम कि उन्होंने एक्सेल ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्सेल का पार्ट बना दिया। यानी क्या, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। Okay, during demo team, if you have any question, please ask here. Okay. So now, तो पहले क्या था, ये डेटा, ये पावर क्वेरी का सेक्शन है टीम, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, ये इतना पावरफुल सेक्शन है, ये एक्सेल का फ्यूचर है, एक्सेल का फ्यूचर। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। पहले ये सेक्शन नहीं हुआ करता था 2010 और 13 के वर्जन में। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड 2016 ऑफिस 365 और 2019 से ये बिल्कुल यहाँ पे है। इसको जगह मिल गई एक्सेल में, पहले जगह नहीं थी इसके लिए एक्सेल पे, लेकिन इतना यूजफुल है कि एक्सेल वालों को रखना, ये माइक्रोसॉफ्ट को ये जगह रखनी पड़ी इसके लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो अभी देखते हैं, देखो ये डेटा में दिखता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म, दिस इज द सेक्शन, दिस इज द सेक्शन। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रैक्टिंग। सो व्हाट बेसिकली एक्सट्रैक्ट मींस, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द डेटा। So data can be extracted from any source, maybe Access application, maybe web, maybe SharePoint, maybe Google Drive, right? Maybe Google Sheet, maybe APIs, JSON, जहां से भी डेटा लाना ले आओ टीम। n number of sources है यहाँ पे, n number of sources। ठीक है, तो हमने डेटा लेके आए, एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे, और हमने अपना पहला काम किया, मतलब डेटा कहीं से भी लेके आ गए। ये समझ में आ रहा है ना टीम आपको, कि आपको जरूरी नहीं है कि डेटा यही एक्सेल में रखना है, दूसरी एक्सेल में रखना है, ऐसा नहीं। आप डेटा वेब से भी ला सकते हो, आप गूगल ड्राइव से ला सकते हो, वन ड्राइव से ला सकते हो, आप ईमेल से डेटा ला सकते हो, कहीं से भी डेटा लाओ। जो भी कनेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो डेटा में जाओ, यहाँ पे गेट डेटा करो,
तो n नंबर ऑफ कनेक्शंस है, एक्सेल है, CSV है, XML है, JSON है, फ्रॉम डेटाबेस, SQL सर्वर है, ये सारी चीजें हैं, एक्सेस है, एज़्योर से डेटा ला सकते हो आप, और ये अदर सोर्सेस वेब से ला सकते हो, ठीक है। ये अपना ओ डेटा फीड, ये हम अपने कोर्स में करेंगे सारी चीजें, ब्लैंक क्वेरी, बहुत सारी, फ्रॉम पिक्चर, कोई पिक्चर उससे भी डेटा ये खींच के ले आएगा, इतना पावरफुल है ये, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन तो हो गया टीम। नाउ एक्सट्रैक्शन मींस फ्रॉम एन नंबर ऑफ सोर्सेज इट इज गेटिंग द डेटा। लेकिन ये पावर क्वेरी है क्या, इतनी जरूरत क्यों है इसकी, ये सारे काम तो एक्सेल पे भी हो सकते हैं, VBA तो था ही पहले, पता है ना VBA के बारे में, पता है आपको VBA के बारे में, विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? किसी को पता है VBA के बारे में? राजीव, रमेश? Yes, sir, I know. Yes, sir. All right. So, anyone has done any this course, VBA course from here before? No. No one. Not yet. Not yet. So team, VBA is like a automation tool. Again, I can say it is a competitor for Power Query, but definitely Power Query team, Power Query runs 1000 times fast as compared to VBA. ठीक है, VBA से 1000 ज्यादा स्पीड से चलता है वो. But the benefits which VBA is having, VBA can do other tasks also, right? मीन्स अगर मुझे फाइल को 100 लोगों को भेजना है तो पावर क्वेरी कैन नॉट डू दैट थिंग. पावर क्वेरी भेजने का काम नहीं करेगा. पावर क्वेरी इज प्योरली ऑन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. इससे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करा लो, VBA से बहुत अच्छा चलेगा, ये बहुत इजी है, कोडिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो देखते हैं बेनिफिट क्या क्या है. बेनिफिट देखो क्या है टीम, यहाँ पे ना डेटा एक्चुअली बहुत इजीली आप यहाँ से आप ये वाले ऑप्शन यूज करके कर सकते हो. लेट मी गो हियर, डेटा, get data, or maybe I'll go to blank query. So team, this is, अब ये विंडो खुलने वाली है. Okay, so team, this is the window which will learn in this 4 months period. ठीक है, 4 महीने से ऊपर का कोर्स रहेगा ये, तो इसमें पूरे विंडो में हम मास्टरी लेंगे. लेकिन अभी है क्या, now here all these options are available, all these options, but our target is team, although we'll be just seeing this option, but हमारा टारगेट क्या होगा, ये सीखना. यहाँ पे एक लैंग्वेज है, जो हमें सीखनी है, ठीक है. तो एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा. तो मैं क्लोज करता एक बार, Alt F12 इज द शॉर्टकट, ठीक है. तो न्यू सोर्स ले आता हूँ, ब्लैंक क्वेरी, अदर सोर्सेस ऑफ ब्लैंक क्वेरी, हाँ ठीक है. सो हियर we can use this option team. Now in example part we will see this, but right now our course will target this thing. There is a language called M language, so this is M language, so here we will target this. So it will make our course effective much better as compared to choosing this option. ठीक है, ये ऑप्शन चूज करने से अच्छा आप यहाँ पे अपना लिख लो, वो चीजें बहुत इजी है वो काम करना. सो वी विल सी टीम, वी विल सी, ठीक है. तो ड्रैगिंग हो सकती है, बट इन आवर कोर्स that here what we have done, the transformation, everything we can do from here also, but not all the tasks. But for doing all the tasks you will have to learn a language which we'll learn here in this course, very simple language that is called M language team. तो M language आप यहाँ पे सीखोगे, M language, ठीक है. So now it can perform any transformation, like team, I wanted to add a column, I wanted to delete a column, filter करना है डेटा, ठीक है, और कुछ कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है, डेटा को मर्ज करना है, डेटा को अपेंड करना है, डेटा को ग्रुप करना है, एंड नंबर ऑफ चीजें टीम, जो भी आप करना चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन में, हियर यू कैन डू इट. सो हियर यू कैन सी, आप मर्ज कर सकते हो डेटा को, अपेंड कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, पाइवट अनपाइवट, वेरी गुड फीचर. आप जो भी सम करना है, कोई फॉर्मूला लगाना है लगाओ, आप अपने फंक्शंस बना सकते हो, खुद के फंक्शंस बनाओ, many other operations
can be automated here. तो अभी पावर क्वेरी है क्या? ये एक्सेल पे तो हो रहा था, एक्सेल पे हो रहा था ना, आपका पूरा पूरा दिन जा रहा था, लेकिन पावर क्वेरी क्या करेगा, 1 सेकंड में वो काम करके देगा आपको, हार्डली 5 सेकंड्स में वो काम करके दे देगा. The activities which are taking complete day, so here that activity can be complete within seconds, within minutes. ठीक है, we will see that. अभी डेमो में देखेंगे हम लोग. ठीक है, so now team, as compared to VBA is also an automation tool, but as compared to VBA, this is very fast in terms of transformation. ठीक है, और एक अच्छा benefit, it is not limited to Excel, n number of sources you can connect. जिससे भी कनेक्ट करना है, किसी भी सोर्स से कनेक्ट करो और एक्सेल में दिखाओ, उसको एनालिसिस करो अच्छा वाला. ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस हियर टीम इन पावर क्वेरी? ये डेमो में कोई इसमें एडवांटेजेस में कोई क्वेश्चन है किसी को? Yes. ऑल सेट ना यहाँ तक? चलो Yes. चलो परफेक्ट. रमेश को ऑल सेट. राजीव, राज, theory part Yes. also, right? Yes, sir. Perfect. So now let's go to this team. After that, once the data you have extracted and you have done n number of transformations, जो भी आपको करना है, कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है, आपको फिल्टर करना है, आपको सॉर्टिंग करनी है, आपको मर्जिंग करनी है, 10-15 टेबल आपस में लेके आने हैं, स्प्लिट करनी है चीजों को. ठीक है, सारी चीजें करने के बाद फाइनली डेटा हो जाएगा लोड, यानी एक्सेल पे लोड कर लो आप उसको, एज अ टेबल लोड कर लो, या डायरेक्टली उस पर ये बना लो, पिवट बना लो, पिवट, या फिर आप डायरेक्टली चार्ट्स बना लो, या फिर लोड मत करो, एज अ कनेक्शन रखो, जब चाहिए होगा तब लेके आएंगे, बट एज अ जस्ट कीप इन मेमोरी एज अ कनेक्शन. ठीक है, तो ये है लोडिंग पार्ट, उसका लोडिंग. आप डेटा रख लो, पिवट टेबल्स रख लो, पिवट चार्ट्स रख लो, कनेक्शंस रख लो. ठीक है, तो टीम ये तो बस थोड़ी सी थ्योरी है. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, एक दो एग्जांपल्स ताकि आपको आइडिया आ जाए. ठीक है, तो चलो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स हियर. तो we have a folder Power Query demo 6th April. So now what we'll do, I'll create a folder here, right click, new, और एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, और इसको बोलते हैं एग्जाम्पल्स. ठीक है, मैं राज से पूछता हूँ. राज, यू आर कंफर्टेबल राइट टिल नाउ? Yes, sir. चलो perfect. So Raj, now what we'll do team, now we will have maybe Raj, there is one person from Hyderabad or Bangalore, Srini is there, Srinivas. I don't know whether you know him or what. Srinivasan. Srinivasan. Okay. So he is also part of this Yeah, session, sir. he is also part of this. So actually what is happening team, this batch is already ongoing, okay, but now what we have done, due to the demand, we have stopped that batch, and again we are starting from coming week. Okay, so today is the demo. So what we wanted to do, all the students, all the new students, we will merge in the in that batch, and we will start from example 1 again. So there we completed somewhere around 15 to 20 example, but now that batch we have scrapped, and this is starting from example number 1 again next week. ठीक है, clear right team? रमेश, सभी को clear है ना? Yes. चलो Yes. ठीक है, so that we can include more students due to the demand, तो हम कुछ students को यहाँ लाने वाले हैं Power Query में. चलो let's see team. So here simply let's have an Excel, right click, new और Excel workbook. ठीक है, 001 और I'll say data. ये मेरा data है. So let's open this. So team, this is a demo session. Mainly the purpose is not explanation. ठीक है, मैं बहुत अच्छे से explain नहीं करूंगा यहाँ पे, बस आपको दिखाऊंगा Power Query क्या है. But in real session we will go very slowly. I will do one example, and after that you will be also performing the same example. Okay, so once you are done, then we will move to the example like this. Okay, AFCK's technique you already know, that I will be solving one example. Post my solving, you will also solve the same example in front of me. Once it is solved, we'll move to the next example like this. Okay, so now let's create a data team. Here we have region, we have product, let's say we have product, we have sales. Let's keep these data only. Sales, okay, region,
north, east, west, south. Product like product 1, प्रोडक्ट आ गए, सेल्स रैन बिटवीन सेल्स ले लेते हैं कुछ, तो सेल्स 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 सेल्स, ओके, स्मॉल डेटा आई एम कीपिंग ऑल स्मॉल डेटा। चलो और बड़ा कर लेते हैं ना डेटा को, तो लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट पेस्ट, लेकिन नंबर चेंज कर लेते हैं, इक्वल टू रैन बिटवीन, कॉपी पेस्ट, ये नंबर्स चेंज हो गए, ठीक है। तो दिस इज द डेटा विच वी आर हैविंग हियर। अच्छा ये इसमें क्या हो गया, लेट्स कॉपी द डेटा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, okay team, so now what happened, we have a data file. Now our purpose team, I will have one more file, right click, new and Excel workbook. So this is 001 getting data from other file. So in this data file we have the data, so that data we wanted to bring here in this file. So what we'll do, let's see, let's open this thing. Let's quickly open this. So now what we'll do, I will go to data, and this is Power Query section, Power Query. So here I'll go to get data from file from Excel workbook, because there is an Excel file from which we wanted the data. So let's click it, Excel workbook को click किया, ठीक है। I have shown the path, copy, तो ये path है जहाँ पे वो फाइल पड़ी है, डेटा ये पड़ा है डेटा। लेट्स ओपन दिस टीम, इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, ठीक है। तो हमने बोला ये डेटा पड़ा है, ये तो ये आ गया ये। So now team, I have an option, I can directly load, because I don't want to do any transformation. But what we'll do, let's do some transformation also. So now what we'll do, let's select this and let's go to the Power Query, transform data. Directly don't load in Excel, go to Power Query. Okay. So this is the window team. Every time 98% time will be here. 2% will come in the front. यहाँ पे कुछ डेटा बनाने के लिए या डेटा अपडेट करने के लिए आएंगे, अदरवाइज 98% विल बी हियर ओनली, ये वाली स्क्रीन पे, ठीक है। नाउ टीम, आई डोंट वांट ऑल द डेटा फ्रॉम दैट फाइल, आई वांट ओनली नॉर्थ एंड ईस्ट डेटा। सो लेट्स सेलेक्ट दिस एंड हियर यू कैन सिंपली फिल्टर इट, राइट क्लिक, से नॉर्थ एंड ईस्ट डेटा यू वांटेड टू फिल्टर, नॉर्थ एंड ईस्ट डेटा। सो फिल्टर हो गया नॉर्थ एंड ईस्ट डेटा। तो आप क्या करो, होम करो, क्लोज एंड लोड कर दो। So like this is the data. Now suppose in future that data file is increasing. Okay, so now let's go to data file. यहाँ पे इस फाइल में डेटा बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, या डेटा फाइल, लेट्स ओपन दिस डेटा फाइल। So here we will keep the data now double. इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं। Okay, so now data is here. एक मिनट, सेव हो रहा है। एक मिनट, क्लोज करता हूँ उसको। ये खुला है ना, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू डेटा, डेटा में हम जा रहे हैं, यहाँ पे डेटा, तो let's increase some data, copy, paste, paste और control S, ठीक है। I have added the data, few data. Now team, I will go to my example. Let's go to my example. Now this data file, data is increasing day by day, the data is increasing. So now here what I have to do, nothing. Now data is increasing, so now currently the number is 5073, right, like this the number is this. So I'll just paste it here for your reference. This is the number. But now what we'll do, we will see what is happening here. तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके बस एक बार रिफ्रेश कर दो, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश इट। सो यू विल सी द नंबर हैज इंक्रीज नाउ, बढ़ गया ना नंबर। व्हाई इट हैज इंक्रीज, because in the main source file it has increased, previously it was still here only. Got it team? So we don't have to do anything, only a simple thing, you every time you have to just refresh the data, right click,
refresh, and everything will happen here. You got it, team? Everyone clear है सबको? Yes, sir. Yes. चलो, तो अभी हमने एक छोटा सा काम किया. So let's do the other thing. तो अभी हम लोग क्या करते हैं? Let's have the data. Control C, Control V. Here we will say 002 data. Again, I am creating some data. 002 data. टीम मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ. I am not explaining you. I am just showing you what we can do here. Okay. Explanation part it will come into the real training. जो भी training होगी. So now this is I will say this is not data. Means maybe say region or we will say this is Ravi data. Ravi. ठीक है. This is Raj data. This is और यहाँ पे रमेश डेटा. ठीक है. और कौन कौन है हम लोग? रवि, राजीव एक्चुअली, सनी. तो व्हाट विल डू, दिस इज राजीव डेटा. ठीक है. और यहाँ पे दिस इज सनी डेटा. कुछ भी ऐसा रख लेता है, सनी डेटा. So now all this data we wanted to bring into one sheet. Okay, so let's close this. So what we'll do, right click new. Team just give me 1 minute. हाँ, मैं इसको चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है. So now team, right click new Excel workbook. So this is our next example, 002 example, like this. Okay, so let's open this. Second example खोलते हैं हम लोग. ठीक है. तो second example खुल रहा है. Yeah. So let's do one thing. Let's get that data. So we'll go to data. यहाँ पे get data and yeah, वो चाहिए ना अपने को, Excel से चाहिए. From file, from Excel workbook. So where is the data? मैं एक बार पेस्ट करूं. तो लेट्स कॉपी द पाथ. ये पूरा पाथ कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पेस्ट करते हैं. और यार गलती से, ठीक है. तो पाथ पेस्ट किया. नहीं, ये फाइल नहीं चाहिए ना अपने को. डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, एक्सेल वर्कबुक नहीं. हाँ, एक्सेल वर्कबुक ही चाहिए ना, फ्रॉम एक फोल्डर नहीं चाहिए क्योंकि मल्टीपल फाइल नहीं चाहिए. फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, and from Excel workbook I want this 002 data. So let's click this. Okay, now what we want actually, तो अभी हमें ना सारी फाइल्स को कोलेट करना है. कोलेट. So what I'll do, I will just load only a single file. So मैं इसको select करता हूँ, single file. So I'm just selecting one file. So हम लोग क्या करेंगे, transform data कर देंगे. Transform data. ठीक है. So I've done transform data team. Now let's see. तो देखो ये ना राज की फाइल है. राज का डेटा है, लेकिन हमें सबका डेटा चाहिए. So what is happening here, we have a query setting. So whatever I will do, suppose I will filter any data. मैं यहाँ पे product 1 को filter लगाता हूँ. तो it will say that you have filter product 1. तो देखो step यहाँ पे record हो रहे हैं. Suppose in future you wanted to go back, just delete this and you are back. So here what we'll do, I don't want Raj data, I wanted to go to the original source. So मैं सब कुछ delete कर दूंगा. delete. यहाँ पे आ गया. अब अपने को क्या चाहिए, अपने को सारा डेटा चाहिए, सभी का डेटा. सो लेट्स डिलीट ऑल दिस एक्स्ट्रा कॉलम. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये हटा दो. नाउ गो टू डेटा कॉलम. आप इसको एक्सपैंड कर लो. एक्सपैंड. तो हियर इज योर डेटा. देखो ये जो डेटा दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेटा, लेकिन इसके हेडर्स ना नीचे खिसके हैं, इसको ऊपर खिसका देते हैं. ऊपर. तो ऊपर कैसे खिसकाए, लेट्स ऐड वन कॉलम. मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ. क्लिक. ठीक है. और मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स ऐड वन कॉलम. टेक यहाँ पे बोल देते हैं table dot add column, and here it is asking about table. ठीक है. तो मैं बोलता हूँ the previous step was a table, this was a table.
So now it is asking new column name. So new column name is data 1. फिर comma, what you wanted to do? I wanted to go to each row and promote the headers. So each करके लिखता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ table dot promote headers, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या प्रमोट करना चाहते हो, हेडर्स को, ये वाला कॉलम जो डेटा है ना, डेटा में टेबल्स पड़े, ये टेबल्स पड़े, इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। क्लोज डन। तो नाउ ये हियर यू कैन सी टीम, जब मैं साइड पे क्लिक करता हूँ ना, so I can see the table. But suppose I'm clicking this link, this will open, the table will open. I don't want to open the table. So let's close it. Okay, close this. ये close कर लिया हमने. So what I have done, here the headers are down, but here I have just corrected the headers. Very fast I have done, because I don't want to show you right now. This is not the time to see all this. बस एक देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। So now the headers are up, region आ गए, product आ गया, sales आ गया। This column is not required now, ये हटा दो। Now just expand this team, expand करो, click करो, ये हटा दो, OK करो, and here you can see all the file data. Name, we have the name means that sheet name, right? From where the file data is coming, sheet name. फिर region हो गया, product हो गया, sales हो गया। Simply I will load this, close and load. So now what is happening? All the data, all the sheets data is coming here. Suppose in future we have new sheet in the data. मैं data में जाता हूँ, अब अपने पास एक नई sheet लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। मैं data में जा रहा हूँ, going to data, और एक नई sheet ले आते हैं यहाँ पे। So let's have a new sheet of Pankaj. Save, close. So simply the sheet is added here, there. You simply have to refresh. Right click, refresh. Right click, refresh here, and that Pankaj data will also come. Here you can see Pankaj data is coming. Clear team, this thing. हम multiple sheets का data collect कर रहे हैं. Clear everyone? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये बस हमने देखो, मैं आपको पहली बात, team, I am not telling you that you have to perform this because you have seen only it. Only 5% आपको पता है सिर्फ अभी तक, बस देखा ही आपने, 5% देखा है, ओके, बट आपने को सिखाया नहीं मैंने आपकी कैसे करना है वो, तो मैं बस वन साइडेड चल रहा हूँ, मैं बस बता ही जा रहा हूँ आपको, ठीक है। बट इन रियल ट्रेनिंग यू नो दैट एवरी स्मॉल वर्ड आई विल राइट एंड द सेम यू विल रिपीट विथ मी, राइट? जो आपने देखा ही होगा, करेक्ट राज? यू हैव सीन इन अदर ट्रेनिंग्स, राजीव, रमेश तो मेरे बैच में थे पहले, so you have seen this. Yes. Yes, sir. Okay, so don't think we are going fast. This is a demo, so only demo, we are just presenting, nothing else. So let's go to the next thing, team. अभी हम लोग क्या करते हैं? Let's create a folder. Right click, new and folder creation. ठीक है, 00003. तो यहाँ पे 003 में ओपन करते हैं, डेटा रख लेते हैं कुछ, कॉपी पेस्ट, फिर से कॉपी, Control C, paste, like this we have the data. Okay, so what we want, all this different files data into one file, simple एक file में रखना है। So now what we'll do, right click, new, Excel workbook. So 003, let's open this, 003, let's open it. तो मैंने ओपन किया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, हम जाएंगे डेटा में, विल गो टू डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, दिस टाइम नॉट फाइल, दिस टाइम फ्रॉम फोल्डर। तो आप अदर्स में जाओ, फ्रॉम अदर सोर्सेस, और यहाँ पे ढूंढो, सॉरी यहाँ पे था ना, इसी में था, फ्रॉम फाइल में, फ्रॉम फोल्डर, बिकॉज राइट नाउ आई वांट मैनी फाइल्स। यहाँ पे जाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो, और ये 003 फोल्डर्स, जो भी फाइल्स होंगे यहाँ पे, बस ओपन कर दो, ओपन। सो इट विल शो यू ऑल द फाइल्स, ये सारी फाइल्स आ रही है। तो अभी जिसे पावर क्वेरी नहीं आता वो क्या करेगा, ही विल जस्ट डू ऑल दिस थिंग, ये पावर हो गया, उसको कंबाइन कर देगा, उसको कुछ आता ही नहीं है ना, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, कंबाइन एंड लोड टू। तो उसने क्या किया, कंबाइन कर लिया और यहाँ पे एक्सेल पे लोड कर लिया, ठीक है। डेमो लोड हो जाएगा।
Sorry, you are saying something? No, I'm saying that the table will get loaded over here. Yeah, correct. So all the tables, yani all the files table will load it here. So here just click OK. Just click OK. And here you can see he has done this. A simple person at the first time also he has done this. But this is good practice? No, this is totally a waste practice. Okay, so this is not the right method. Why? I'll show you. Because if we go to Power Query, let's go to data, get data, query of here, launch Power Query. So here, see what he has done. So many things are coming. This all thing. This is totally confusion. I don't know what is happening here. So many things. Okay, so this can be achieved in a very nice manner. If you know the programming, you can achieve it very easily and very smooth. This all steps are also not required. And the programming will be in your control. Let's see that thing. अभी क्या हो रहा है, पूरी खिचड़ी बन गई है टीम, बराबर. Suppose you wanted to do any corrections, you will not be able to do it. सही बात है ना. यहाँ पे क्या कर लोगे आप, इतनी सारी चीजें हैं देखो. करेक्ट. और ये बहुत स्लो भी चलेगा. चलो लेट्स सेव इट. 003, इसको हम बोलते हैं 003. Let's give a name 003. Here we will say collate data as a beginner. हम बस एक beginner की तरह data collect कर रहे हैं. But let's see what we'll learn here. Right click, new, Excel workbook 004. ठीक है. Collate data using M language. हम कोई language use करेंगे हम लोग. Let's open this 004. I'm opening it. ठीक है. चलो बस देख लो, आपको समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है. Data, get data. This time not from file, I will say just collate the data using query, blank query, because I wanted to do some great things. So I will use blank query like this. ठीक है. तो अब मेरे को लिखना है, क्योंकि मैं इससे नहीं कर पाऊंगा जो काम मुझे करना है. मुझे अपनी नॉलेज दिखानी होगी, मुझे नॉलेज यूज करनी होगी, क्योंकि अदरवाइज वो काम नहीं हो पाएगा. बहुत होगा भी तो बहुत कचरा तरीके से होगा. ठीक है. इट विल नॉट बी दैट मच the better practice. It will not be a good practice. So here I am doing with a good practice. So what we'll do, let we will start or end करेंगे. So here this is the place for all the inputs, this is the place for output. So let's see what we wanted to do. Let, तो हमने क्या कहा, t1 is equal to folder dot contents, right? Folder dot contents. So path पूछ रहा है folder का path. So folder path is this thing. हमने बोला ये path है जिससे सारी फाइल चाहिए अपने को, तो ये फाइल, तो ये path आ गया. This is the path. So now here we will write return t1. Show me what you are getting from that folder. So like this, it is saying, okay, these files are there, right? All these files, and the file is like this, right? The file is standing like this. ऐसे दिख रही है फाइल, ऐसे. मैंने बोला हाँ करेक्ट है, यही फाइल है. So now let's remove this extra column. It is not required. ठीक है. तो how we can remove it? ये बेकार के कॉलम है. So we will say comma t2. हम बोलेंगे क्या करो, table dot remove columns. So it is asking table, which table? From t1. T1 is a table. Column has any team. So any time if it is asking any बोल रहा है ना, तो curly bracket लगता है. curly bracket. जब भी any बोलेगा तो curly bracket. So which column we actually remove column नहीं बोलते, select column बोलते हैं, क्योंकि दो column होंगे ना. Dot select columns. तो पूछ रहा है table क्या है. T1 is the table and the column which I wanted to select, मैं थोड़ा यहाँ आता तो अच्छा रहता, क्योंकि मुझे लेफ्ट में दिखता है ना क्या क्या सेलेक्ट करना है. So let's come here. So I wanted to select content and name. नहीं, काम करते हैं ना पहले. ये जो content है ना, let's open this into Excel workbook. Excel workbook पे खोलते हैं इसको. तो हमें क्या करना पड़ेगा, we will just go here, T2. We will say table dot add column. ठीक है. Add column क्या, table क्या, T1 is a table. New column name is, let's give the name as content 1. तो करना क्या आपको यहाँ पे,
इसको each, you have to go to each row and open this file into Excel workbook. तो आप क्या करो, excel.workbook बोल दो। फिर वो फाइल पूछ रहा है, फाइल कहाँ पे, वेयर इज द बाइनरी, द बाइनरी इज हियर, हियर। तो आप बोलो कंटेंट है वो, कंटेंट। नाउ जस्ट रिपीट, पुट दिस T2, आपने यहाँ डाला। So now you can see one, yeah, think, just give me 1 minute. Yeah. So here at the right side you can see a new thing. So this is the data, right? उसमें ये शीट पड़ी है ना अंदर, शीट 1, और उसमें डेटा है। This is the workbook, right? Workbook, उसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, डेटा। So now what we'll do, we will say we don't require this column, only this column we require, and only the last column we require, the data column. तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम बोल देते हैं हमें 2 ही कॉलम चाहिए। Which column we require, comma T3 table dot select columns. Now it is asking which column, T2 columns as any curly bracket. So name we want, and content 1 we want. So just say T3 and here you have the 2 columns. यहाँ से आप कुछ नहीं करना, बस इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड। और एक्सपैंड करेंगे तो टीम आपको क्या लगता है, विच कॉलम वी रिक्वायर, क्या हमें नेम, तो चलो शीट का नाम है, शीट का नाम, डेटा, बट डू वी रिक्वायर दिस आइटम काइंड हिडन, चाहिए क्या अपने को आइटम काइंड हिडन, डू वी वांट दिस आइटम काइंड हिडन, लगेगा अपने को, बताओ अंदर टीम, ये Not required. not required, right? Only item, only this name and data is enough, because name is sheet name and data is data, data is data. So what we'll do now, हम इसको expand कर लेते हैं, ठीक है, comma T4 table dot expand table columns, हम ऐसा लिखेंगे। तो वो बोलेगा टेबल क्या पे है, T3 is the table, कॉलम, कॉलम हम बोलते हैं ये है, कंटेंट, कंटेंट 1 is the column, लिस्ट पूछ रहा है क्या क्या कॉलम चाहिए आपको, मुझे चाहिए नेम एंड डेटा, तो आई राइट नेम, I want name and data. So this portion also I can automate, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं। So let's go to T4 and here we have the data team. लेकिन name already exists बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, you are expanding name, right? आप वो बोल रहा है कि आप नाम ला रहे हो, तो we will say ठीक है, name पहले से है ना, तो आप क्या करो, while getting the data give me some other names, इसको name 1 कर लेते हैं, या हमने क्या डाला था, region था ना, या sheet name बोल देते हैं, sheet name. So bring the data like this, T4. So now name is coming, sheet name is coming, table is coming. So what do you feel, next step क्या होना चाहिए आपका, नेक्स्ट स्टेप इसको भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, डेटा को, राइट? डेटा को भी एक्सपैंड करना चाहिए टीम, यस नो? ये जो डेटा है Yes. इसको एक्सपैंड करोगे ना आप, लेकिन एक काम कर ले, लेट्स प्रमोट द हेडर फर्स्ट, अदरवाइज प्रॉब्लम, Correct. करेक्ट? तो लेट्स डू दिस थिंग, कॉमा T5 टेबल डॉट, नहीं हम लोग ये करेंगे ना, टेबल ऐड कर लेते हैं कॉलम, टेबल डॉट ऐड कॉलम। तो हियर इट इज आस्किंग टेबल, T4 इज द टेबल, न्यू कॉलम नेम इज डेटा 1, और उसको बोलेंगे ईच टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स। तो वो पूछ रहा है प्रमोट हेडर्स कौन से टेबल, तो इट इज कमिंग फ्रॉम डेटा कॉलम, तो आप डेटा बोल दो, डेटा जैसे ही बोलोगे आप, एंड हियर यू राइट T5, तो देखो यहाँ पे आ जाता है, तो ये देखो प्रमोट होके आ गया, सो नाउ इट इज प्रमोटेड अप, अदरवाइज वो कैसे दिख रहा था, वो ऐसा दिख रहा था, ऐसा ऐसा, सो नाउ इट इज प्रमोटेड।
Yeah, team, I'm audible. Hello. Yeah, team, I'm audible now. मेरी आवाज आ रही है अभी? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो एक मिनट देना, ये मैं थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ चार्ज पे नहीं हो रहा है लैपटॉप। अच्छा, एक सेकंड ना, ये कनेक्ट ही नहीं, तो मैं कनेक्ट करता हाँ, हूँ। ओके, जस्ट वन क्वेश्चन है। या सनी प्लीज आस्क। मोस्ट ये पावर क्वेरी के लिए सिस्टम जो हम लोग अगर आइए जो क्लास है इसमें मोस्टली लोग आर लैंग्वेजेस ही रन करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट सॉरी समझ रहे होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि पावर क्वेरी मैं ऐसे सिर्फ पावर क्वेरी एज यूज करता हूँ अपने कंपनी में कुछ डेटा बनाने के लिए, बट मैं कभी ये जो आप लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो मैंने कभी यूज नहीं किया है। हाँ, तो वही सनी वही होता है। देखो, अभी लोगों को ना पावर क्वेरी पता है, लेकिन लोगों को ना इस बेटर प्रैक्टिस नहीं पता। अगर उनको ये नहीं आता ना, तो उनको नहीं आता है सनी कुछ। ओके लोग ओके लोग क्या करते हैं, वो ना ऊपर के ऑप्शन यूज करते हैं, और ऊपर के ऑप्शन से बहुत ऐसे टास्क है जो हम नहीं कर पाएंगे सनी। तो आपको करेक्ट पावर क्वेरी आता करेक्ट है मैं डेफिनेटली। हाँ, डेफिनेटली वो जो लोग कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा बहुत ये ऑप्शंस आते हैं, बट दैट दे डोंट हैव द एडवांस नॉलेज। और एडवांस नॉलेज आपको ये जो धीरे धीरे ये चीजें ना, ये सीखनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं सनी बहुत फास्ट जा रहा हूँ, मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन रियल एग्जाम्पल जब करेंगे तो हम बोलेंगे लेट क्या होता है, अच्छे से देखेंगे, तो एक एक चीज अच्छे से देखेंगे, ठीक है? तो ऐसे हाँ हाँ चलने हाँ, ऐसे चलने वाला। बस जो मेरा क्यूरियोसिटी था डाउट कि हम लोग क्या यूज करेंगे इसके इसके लिए मैं पूछ लिया। थैंक यू। करेक्ट करेक्ट, तो ये यही करने वाले हो। अदरवाइज आप ये जो भी बोल रहे हैं ना, मैं ऐसे ही करता हूँ, तो आप समझ जाना कि इसको नहीं आता पावर क्वेरी। ये आते हैं तो ओके ओके लिमिटेड लिमिटेड ऑप्शंस आते हैं। फिल्टर लगाना आता है, कुछ डेटा कॉलम डिलीट करना आता है, कुछ डेटा मर्जिंग आती है, लिमिटेड चीजें आती है। वो ही इज नॉट एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट है उनको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज ये लैंग्वेज वही समझ गया। या दिस लैंग्वेज इज वेरी सिंपल टीम। तो हम लोग भी एक्सपर्ट ही बनेंगे आगे इस अगर कंटिन्यू करेंगे कि वही जो जिसको जो ऑप्शन आता है नॉर्मल वो करेंगे। Correct, correct. So this is very whatever things you will do in full control, and the best practices you will do so that complex task भी आप easily कर लोगे। अब उसमें क्या होता है, अपना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क कर नहीं पाओगे आप अटक जाओगे, आप सोचोगे क्या करूं, वो जुगाड़ कर रहे हो, फिर आप जुगाड़ करने वाले हो। हम्म, ठीक है, तो यहाँ कोई जुगाड़ नहीं, सारी चीजें आपके कंट्रोल में है यहाँ पे। देखो ना, इससे पहले मैंने जुगाड़ ही क्योंकि किया था। अभी हाँ, रिसेंटली पावर बीआई का कोर्स किया मैंने बजाज के हाँ, साथ, तो उन्होंने ही मुझे रेफर किया है कि आप एक बार पावर क्वेरी भी कर लो आ लैंग्वेज के इस पे। हाँ, इसीलिए मैं इधर अभी डेमो के लिए आया हूँ। हाँ, तो सनी अपना बहुत सही जगह हो। और लोग क्या करते हैं, पावर बीआई कर लेते हैं। पावर बीआई में अपने लिमिटेड ऑप्शंस देखे होंगे ऊपर के पावर करेक्ट क्वेरी पे। करेक्ट तो लेकिन अगर डिटेल में पावर बीआई सीखना है ना, तो पावर क्वेरी अच्छा होना चाहिए आपका। तो करेक्ट ये एक इसीलिए बेस मैं है। हाँ, ये आप सही जगह आए आप। तो ये बेस है, बेस। ये अगर अच्छा है तो पावर बीआई भी अच्छा है, और एक्सेल में एन नंबर ऑफ ऑटोमेशन आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सेल पे भी आता है। करेक्ट ठीक है, तो ये चीज है। और ऐसी टीम डाउट पूछते रहो, जैसे सनी पूछ रहे हैं, आप भी पूछते रहो। सर और एक क्वेश्चन था। अगर बताइए। पावर क्वेरी सीख लिया तो नेसेसरली आपको आई मीन यू डोंट हैव टू डू पावर बीआई, इज दैट व्हाट यू सेइंग? और Yeah. So Rajiv, Power BI is basically a complete thing, a different thing. That is ओके, about presenting our data into visualization. But right now, what is happening? People are thinking that only charts. We are making charts. हम थोड़ी बहुत चीजें सुंदर बना के दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में तो ऑटोमेशन हो रहा है ना। बैकग्राउंड में तो 50 फाइल का डेटा एक जगह लेके आ रहे हो, फिर उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगा रहे हो, बहुत सारे कॉलम्स ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। सो ऑल दैट थिंग इज पावर क्वेरी इज ओनली डूइंग दैट थिंग। लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पे राजीव, वहाँ पे ना नॉर्मल तरीके से लोग कर रहे हैं, मतलब उनको पता नहीं है, अच्छी चीजें नहीं पता। तो ये जो पावर क्वेरी है ना, ये अगर आपका अच्छा कंट्रोल है तो आप बहुत अच्छे से डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, आप जुगाड़ कर लोगे और सिस्टम परफॉर्म नहीं करेगा वैसा जैसे उसको परफॉर्म करना चाहिए। और वो जुगाड़ भी आप लिमिटेड 80 कर लोगे, कहीं पे भी कर लोगे, लेकिन ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें होगी जहां नहीं कर पाओगे आप। वो पावर क्वेरी आपको ये सीखना ही पड़ेगा, फिर आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यू गॉट इट राइट राज? यस राजीव ने पूछा। ठीक है, चलो परफेक्ट टीम, चलो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और टीम, आप ये मत सोचना यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं,
ये मुझे भी बहुत ऐसे ही लगता था, क्या ये टफ सी चीज, लेकिन दिस इज नॉट एट ऑल टफ, वेरी वेरी सिंपल थिंग और वेरी वेरी गुड प्रैक्टिसेस आई कैन से। ये आने के बाद मैंने इतने ऑटोमेशन किए टीम, जो मेरे को मतलब इतने एन नंबर ऑफ ऑटोमेशन किए इसकी वजह से ये पावर क्वेरी मुझे आता है। तो अब मैं वीबीए से पहले पावर क्वेरी में जाता हूँ क्योंकि इजी हो जाता है काम। अभी मैं वीबीए से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट। नाउ वी हैव अ अपडेटेड कॉलम, ये हमारे पास एक अपडेटेड कॉलम है, लेकिन अभी हमें ये नहीं चाहिए, डेटा कॉलम नहीं चाहिए। तो हम बोलेंगे क्या करो, T6 टेबल डॉट रिमूव कॉलम्स। वो पूछेगा कौन सा कॉलम रिमूव करना है, तो विल से T5 में जाओ, कॉलम एज एनी, कॉलम एज एनी, और ये वाला रिमूव कर दो, डेटा वाला। तो डेटा कॉलम इज गॉन नाउ, T6, तो ये गया। तो अभी ये आ गया, लेकिन अभी अपने को ये एक्सपैंड करना है ना, ये वाला टेबल एक्सपैंड करना है। तो क्या है, रीजन है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, तो ये चाहिए अपने को। चलो हम बोलते हैं क्या करो, सिंपल T7 टेबल डॉट, सॉरी आई विल राइट T7 टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स, हमने ऐसा बोल दिया। फिर वो पूछ रहा है क्या टेबल कहाँ पे है, T6 इज द टेबल, कॉलम नेम जो आपको नया ये चाहिए, किसको एक्सपैंड करना है, इसको डेटा वन को एक्सपैंड करना है, डेटा वन को। फिर पूछ रहा है कॉलम बता दो क्या क्या चाहिए, रीजन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सेल्स चाहिए। तो हमने क्या बोला, मुझे रीजन चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए, सेल्स, ऑल दिस। तो लेट्स राइट T7 और यहाँ पे एक्सपैंड हो गया, पूरा डेटा आ गया आपका टीम। दिस इज द फाइल नेम, दिस इज द शीट नेम, दिस इज रीजन, प्रोडक्ट एंड सेल्स, लाइक दिस। ठीक है, आप कुछ मत करो, क्लोज एंड लोड कर दो, क्लोज एंड लोड। तो हियर यू हैव द डेटा नाउ, यहाँ पे देखो ये डेटा आपके पास, ये वाला। तो आप क्या करोगे, अगर फाइल बढ़ गई, अभी देखो कितनी फाइल्स दिख रही है, राइट नाउ इट इज शोइंग यू 8 फाइल्स डेटा, 8 फाइल्स। सपोज आई एम एडिंग न्यू फाइल्स, तो अभी मैं क्या करता हूँ, लेट्स ऐड वन न्यू फाइल, Ctrl+C Ctrl+V, एंड दिस इज सनी फाइल, सनी की एक नई फाइल आ गई, कॉपी पेस्ट, एंड दिस इज राजीव फाइल, राजीव की एक नई फाइल आ गई, यहाँ पे डेटा में आ गए। तो नथिंग यू हैव टू डू टीम, नाउ द न्यू फाइल इज देयर, यू सिंपली जस्ट डू राइट क्लिक एंड रिफ्रेश। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, बिकॉज राइट नाउ राजीव एंड सनी फाइल इज नॉट हियर। तो आप सिंपली राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करो, एंड आफ्टर दैट यू विल सी दैट फाइल डेटा इज ऑल्सो हियर। देखो ये राजीव का डेटा आ गया, राजीव एंड सनी, है ना मजेदार टीम, कितना सिंपल स्टेप है। मतलब सिंपल जो भी है, मतलब ये जो स्टेप्स हैं कितने ऑर्गेनाइज तरीके से लिखे हमने, करेक्ट सनी? आपको तो पता ही है, पावर क्वेरी आप देखते हो थोड़ा बहुत, इतना ऑर्गेनाइज करेक्ट इतनी करेक्ट। ऑर्गेनाइज नहीं होती ना चीजें। तो देखो हमने कितना मैं फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन जो आपने बताया था मैं वैसे यूज करता हूँ इसके लिए, ये हाँ तो आप आर लैंग्वेज मुझे पता है बट मैंने कभी यूज किया नहीं है। हाँ तो एम लैंग्वेज सनी मैंने दिस। देखा है एज ए विजुअलाइजेशन, देखा है मैंने, जैसे अभी आप दिखा रहे हो वैसे ही देखा है मैंने, पर कभी यूज नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता उतने अच्छे तरीके से। हाँ तो वही हम सीखेंगे यहाँ पे पर्सनली। तो अभी जैसे मैं सिखाऊंगा तो फिर हम लोग एक अलग तरीके से बहुत स्लोली सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको बस चल ही रहा है, वन साइडेड है डेमो। चलो टीम, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दिस। ये हमने किया पावर क्वेरी से, ठीक है, ये पावर क्वेरी से किया, एक वीबीए से भी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेल लेके आते हैं, एक्सेल, यही सेम काम ना वीबीए से करता हूँ, वीबीए से, तो अच्छा रहेगा ना, आपको डिफरेंस भी दिख जाएगा जल्दी से। तो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑल्ट F11। तो वीबीए इज लाइक थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ना और लैंग्वेज सीखनी है, टफ लैंग्वेज सीखनी है, मतलब एज कम्पेयर टू पावर क्वेरी थोड़ी टफ है ना वो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सब कोलेट डेटा, मैं यहाँ पे डेट वही सेम काम करने वाला हूँ। तो मैं बोलता हूँ मैं एक फाइल पाथ आपको पास करूंगा, फाइल पाथ। तो बोल रहा है फाइल पाथ क्या है, मैंने बोला ये फाइल पाथ है 003, मैं आपको ये फाइल पाथ देने वाला हूँ, इससे आपको डेटा लेके आना है, ठीक है, इससे डेटा लेके आना है। तो बोल रहा है ठीक है। तो मैंने बोला आप क्या करो, डायरेक्टरी पहली फाइल को रेफर करो, पहली फाइल, फिर पहली फाइल, अगर सेम लाइन में फिर से लिख दूंगा तो वो दूसरी फाइल, तीसरी फाइल। तो अब ऐसे ही लिखना है तो आप ऐसे कर लो, आप लिख दो FN डायरेक्टरी। अब ये बताने की जरूरत नहीं अपने को, ये FP बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। चलो यहाँ पे चलते हैं हम लोग टीम, अगेन दिस आई नो दैट यू हैव नॉट सीन दिस, तो मैं बस आपको बताया जा रहा हूँ।
डू अंटिल तब तक करो जब तक ये fn क्या हो, ब्लैंक ना हो, और यहाँ पे लूप कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है, लूप को क्लोज कर दो। फिर आप क्या बोलो, एक एक करके फाइल को खोलो, वर्कबुक्स डॉट ओपन, तो पूछ रहे कौन सी फाइल है बताओ किसको खोलना है, तो मैंने बोला fp को खोलो एंड fn को खोलो, ठीक है, और जो भी फाइल खोल रही है ना उसको बोलो wbk, यहाँ पे लिख दो सेट। अब ये क्यों लिख रहे हैं पता नहीं, वो कहानी हमने सीखा होगा कभी ना कभी क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है, तो वो कहानी जब आप कल को VBA करोगे तो सीखोगे, लेकिन अभी पावर क्वेरी में इतनी कहानियां सीखने की जरूरत नहीं है। डिम wbk एस वर्कबुक, डिम sst एस वर्कशीट, मैं एक वर्कशीट का भी वेरिएबल बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, wbk की शीट्स में पहली शीट में डेटा पड़ा है, पहली शीट में वो आपकी शीट है, उसको आप बोल दो SST, वो आपकी शीट है, और यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। अब क्या करो, SST से जाओ, रेंज A1 से कंट्रोल A कर लो, कंट्रोल A, ठीक है, और वहां से बस एक सेल नीचे आ जाओ, 1,0, क्योंकि अपने को हेडर नहीं चाहिए, उसको कॉपी कर लो, उसको कॉपी कर लो, पेस्ट कहाँ पे करोगे, जो मेरी शीट 1 है उस पर पेस्ट कर दो, शीट 1 डॉट रेंज A एंड LR में, मतलब लास्ट रो फाइंड करना पड़ेगा पहले आपको, लास्ट रो फाइंड कर लो, तो आप क्या करो, शीट 1 में जाओ, रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, किसका हुआ है पहले, ये VBA किसी का हुआ है, आप में से किसी का, पहले आपने बताया था ना किसी ने, राज, राजीव, सनी, VBA डन बिफोर आई, यूट्यूब कर करके नहीं किया नो बट अच्छा अच्छे यूट्यूब से नहीं। करके, अच्छा ठीक है, चलो यूट्यूब में तो फिर उतना वो नहीं है ना, मजेदार नहीं है वो तो फिर, लेकिन हाँ चलो सीखने के लिए ठीक है, ठीक है, चलो परफेक्ट, पहली बार देख रहा हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अभी हमने क्या किया, शीट LR+1 में डेटा डाल देते हैं, +1 में, एक और बार ये ले लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे वो भी चीजें डालनी है जो उसकी ये है ना, यहाँ से ये LR1 बोल देता हूँ, LR1, ठीक है, और यहाँ पे बोल देता हूँ क्या, ठीक है, बराबर बराबर, तो आप बोल दो शीट 1 डॉट रेंज D एंड LR डॉट वैल्यू, उसमें क्या करोगे आप, WBK का नाम डाल दोगे, नाम, ऐसा, बस हो गया, ठीक है, तो ये काम हो गया, बस एक बार ये जो हेडर्स में लेके आने वाला वो हेडर्स डाल देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, शीट 1 में जाओ, रेंज A1 से लेके C1 में डॉट वैल्यू डाल दो, क्या क्या वैल्यू थी अपने पास, हेडर क्या क्या थे, ये ना, जो हमारे पास हेडर थे वो ये थे ना, ये वाले, रीजन प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है, तो ये डाल दो, अब बोल दो क्या, एरे रीजन प्रोडक्ट और सेल्स, ये एरे, ये हो गया, तो बराबर, बस आपका प्रोग्राम, अब बस इसको चला लो, यहाँ पे जाओ, मैं इसको एंड कर लेता हूँ, एंड, तो ये रेडी हो गया आपका प्रोग्राम, बस एक बार F5 कर लो, यहाँ पे F5, तो देखो ये प्रोग्राम आ गया, ठीक है, सारी फाइल्स को खोल रहा है, डेटा लेके आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं लेके आ रहा, वो जो हमें शीट नेम भी चाहिए ना, वर्कबुक नेम भी चाहिए, D एंड LR तो हमने बोल दिया, वर्कबुक नेम, ठीक है, तो कि कौन सी फाइल से लेके आ रहा है वो, WBK नेम तो हमने बोला, D एंड LR से लेके, LR तो मिल गया उसको बराबर, तो LR+1 बोलते हैं ना, D एंड LR+1 से लेके D एंड LR तक में वर्कबुक का नाम डाल दो, बस इतना काम कर लो, अच्छा, तो हम लोग ये काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये सब हटा देते हैं, Ctrl Z, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग डेटा में जाते हैं, अननेसेसरी ये चीज आ गई है, अनग्रुप कर देते हैं उसको, क्लियर आउटलाइंस, ठीक है, मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ सब कुछ,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सेलेक्ट करता हूँ, नहीं चाहिए सब कुछ। अब देखो क्या होगा, क्या हो रहा है, ये मतलब बैकग्राउंड में चल रहा है क्या, एक बार सेव कर लेते टीम इसको। तो इसको बोल देते हैं 004 कोलेट डेटा यूजिंग VBA। ओके, तो सी द डिफरेंस, और यहाँ पे इसको XLSM में सेव करेंगे हम लोग। सेव कर लेते हैं, सेव। तो नाउ लेट्स सी, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमने सब डिलीट कर दिया। नाउ आई कैन जस्ट हैव वन बटन, इंसर्ट करता हूँ मैं, और वी विल हैव वन स्मॉल बटन। यहाँ पे एक स्माइली दे देते हैं, ठीक है, तो ये स्माइली, राइट क्लिक, assign macro, so collate data. So what you'll do now team, simply click this। तो देखो डेटा आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, लेकिन अपना एक स्टेप रह जा रहा है ना, बार बार अपना वो नहीं आ रहा है, हेडर नहीं आ रहा है, हेडर। तो हम लोग चलते हैं Alt F11 करते हैं, अपने को वो भी चाहिए ना, वर्कबुक का नाम भी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वर्कबुक नेम करके लिख देते हैं, और इसको D1 बोल देते हैं, बराबर, ये तो हो गया। अब D एंड LR भी मिल गया, LR+1 हो गया, शीट 1 बोल दिया हमने, बराबर। और D एंड LR, यहाँ से LR1 बोलना पड़ेगा, LR1, एक में वर्कबुक का नाम डाल दो, वर्कबुक का नाम। तो यहाँ पे जाओ, हटाओ, ये हटाओ, और ये सन्नी को क्लोज कर देते हैं, राजीव को क्लोज कर देते हैं। हम ये भी बोल देते हैं कि फाइल भी क्लोज करो यार, ये फाइल नहीं चाहिए, क्लोज क्लोज, ये रहने दो। तो अभी हमने क्या किया, एक वर्कबुक काम होने के बाद बोलेंगे वर्कबुक को क्लोज भी कर दो, उसका काम हो चुका है, wk.close क्लोज बोल दो, ठीक है, ऐसा बोल दो। तो ये हमने किया। अब हम गए यहाँ से यहाँ तक, और अच्छा ये भी डेटा ही था ना, ठीक है, तो जो बस अभी ये डिलीट कर दो टीम, ये हमने VBA से बनाया, बस अब क्लिक करो, तो देखो वर्कबुक का नाम आ रहा है, ये आ रहा है। चलो, चले जा रहे हैं, 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 हो गया काम। अब हो गया, तो देखो सारी फाइल का डेटा आ गया क्या, सारी फाइल का डेटा वी हैव हियर, राजीव सन्नी तक का आ गया। कितना डेटा है, 360 रो आइटम्स है, 360। so this is done using VBA। so now let's open the Power Query 1। तो मैं Power Query को खोलता हूँ, M language, ठीक है, what we have done using M language, I am opening that। आप क्या करो, यहाँ पे ये कर लो, इसको डिलीट कर लो, डिलीट, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक और रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी, देखो यहाँ पे भी टाइम लग रहा है हल्का सा, लेकिन ठीक है, फिर भी VBA से तो फास्ट है, क्या कहते हो टीम। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो इज इट टेकिंग द सेम टाइम और इज इट फास्ट। यहाँ पे कितने रो आइटम है, 360 होने चाहिए, 360, बराबर। सो लेट्स हैव मोर फाइल्स टीम। यहाँ पे चलते हैं हम लोग और बोलते हैं अरे फाइल को डबल कर दो, ये कॉपी करो, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, तो ये फाइल डबल हो गई, और ट्रिपल कर लेते हैं, कितनी फाइल होगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी पावर क्वेरी फर्स्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, फाइल डबल ट्रिपल कर दी है, तो करेंटली वी वर हैविंग 360 रिकॉर्ड्स, लेकिन अभी फाइल बढ़ गई है ना डेटा सोर्स में। राइट क्लिक, रिफ्रेश, राइट क्लिक, रिफ्रेश, एंड हियर यू कैन सी रिफ्रेश, 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 और ये हो गया। तो हार्डली आई कैन से 3 सेकेंड्स, करेक्ट टीम, 3 सेकेंड्स। और देखो यहाँ पे 3 सेकेंड्स एंड वी हैव 1080 रिकॉर्ड्स। सो लेट्स, आई एम ऑडिबल राइट टीम, एवरीवन, मुझे मेरी आवाज आ रही है ना आपको। यस, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सेम थिंग हम VBA से करेंगे टीम। उसमें 3 सेकंड लगे थे, या मान लो 5 सेकंड लगे थे। अब इसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पे पहले तो मैं सब हटा देता हूँ, ये हटा दिया, और इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक, चलो काम स्टार्ट। 2 सेकंड गए, 3 सेकंड गए, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। अभी फाइल कम है इसलिए इतना टाइम ले रहा है वो। अगर कल को 1000 फाइल हुई ना, तो पावर क्वेरी तो वही लेने वाला है, 4-5 सेकंड, लेकिन ये देखना आपको बहुत टाइम दे देगा फिर ये। यू कैन सी द डिफरेंस पावर क्वेरी और पावर VBA का in terms of transformation। VBA is having a different place, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है,
ठीक है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो बहुत जबरदस्त चीजें कर सकते हो आप टीम। चलो, लेकिन वीबी की तो फ्यूचर बात है, फ्यूचर की बात है, बट करंटली होपफुली द डिफरेंस इज क्लियर एवरीवन। तो कौन सा इजी है आपको, फिर भी अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो ये इजी लगा आपको, या आपको वो वाली कोडिंग इजी लगी? ये अगर आप जाओगे पावर क्वेरी को देखोगे कि आपको ये एम लैंग्वेज इजी लगी। अभी मैंने तो कुछ समझाया नहीं खैर आपको, लेकिन टीम ये जो सीखना है ना, ये आप इजीली सीख जाओगे। वीबी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। ये देखो, इजी है ना, ये 7 स्टेप्स में काम हो गया। वहां पे पता नहीं क्या, और ये 7 स्टेप भी बहुत मुश्किल नहीं थे आपके लिए। आपको दिख रहा है कि यार फोल्डर से डेटा आ रहा है, एक कॉलम ऐड हो रहा है, कुछ कॉलम सेलेक्ट किया आपने। इजी है ना ये, क्या कहते हो? यस चलो, ये ठीक है। तो ये मुझे सन्नी ने बताया, उनको तो इजी है क्योंकि वो करते ही है बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे अपने, यहाँ पे मिसिंग है क्या रमेश? अच्छा, रमेश ने मिस कर दिया, ठीक है। बाकी राज क्लियर, राजीव राजीव, संजय, सनी क्लियर, राइट एवरीवन? Yes. Yes. चलो, परफेक्ट। तो टीम, दिस आई हैव जस्ट शोन यू फ्यू एग्जांपल्स, ओके। तो अब हम लोग आगे Sir, I have one doubt, यस Raj here. यस राज, Sir, what does it mean by M language? या तो राज, एम लैंग्वेज में मींस मैशअप लैंग्वेज। मैशअप मींस योर डेटा इज, Mesh. yeah, your data is Mhm. meshed and you are just cleaning that data, so that is mashup language. So, will you tell in that practical sessions? Yeah, completely, Raj, our course will be completely on M language only, okay? Means Okay. what we'll do the way Sunny is doing, right? Normally he is doing that thing Mm-hmm. will show, and after that I'll show you the best practices. जो सनी आप करते हो ना, उससे वैसे भी तो हम लोग एक देख लेंगे कि कैसे करते हैं। करेक्ट तो वो लेकिन अच्छे तरीके नहीं है, बट आई विल टीच यू द बेस्ट वे। तो राज, डेफिनेटली फॉर एक्सप्लोरिंग पावर क्वेरी और टू हैव एडवांस नॉलेज, you should have a control on this mashup language. Yes, sir. no Definitely. problem man. That's why I'm over here in order to learn M language. I work in Power Query with the tools at the top, but I wanted to learn about the M language. That's why I'm here. Correct, Sunny. So you are at the right place, and very skillful course team. I normally recommend to all my students go for Power Query, one of the valuable course. ठीक है? होता क्या है, Power BI में छुप गया है सनी, Correct. Rajiv, Rajkumar. So what is happening behind Power BI? It is hidden, and people don't know the power of this. This is a very underrated application, I can say, underrated. कि लोगों को पता है कि लोग यूज कर रहे हैं, धड़ाधड़ यूज कर No, रहे हैं। but the whatever percentage I'm using the Power Query, but I am finding very helpful for me in order to present data to my company, and the people over there is looking into that. I have to click just the refresh button in order to get all the data and the view and everything. करेक्ट। तो सनी, वही हो रहा है कि मतलब इतना यूजफुल होने के बाद भी बहुत अंडररेटेड है। इसको थोड़ा टॉप पे आना चाहिए और Correct, प्रमोशन होना चाहिए इसका। correct, Okay, so correct. mainly what is happening team, at least you are in this stage now that you know about Power Query. So I was in the same stage 4 years back. तो मुझे 5 साल पहले पता चला, अरे यार ये तो खतरनाक काम करता है, एंड दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो फिर मैंने काफी चीजें कर पाया इसकी वजह से। अगर मुझे बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं आती तो फिर मैं थोड़ा काम करता, लेकिन बहुत एफिशिएंट नहीं होता वो। दैट वुड नॉट बी दैट मच एफिशिएंट। मैं भी बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए ही आपके पास आया हूँ. हाँ, तो सनी सही जगह हो आप, बहुत अच्छी चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। और Okay, आप no तो बहुत problem. Thank बेनिफिट you. उठाओगे क्योंकि आपको पहले से भी चीजें पता है, यार मैं ऐसे करता था, ये कितना अच्छा तरीका है। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने वाले। चलो, Sure, अब sure. जिनको नहीं भी आता टीम, पावर क्वेरी नहीं भी आता है, तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विथ वेरी स्क्रैप। ठीक है, आपको यू शुडंट बी नोइंग पावर क्वेरी, बिकॉज ईच वर्ड, ईच डॉट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द रियल क्लास। ठीक है, तो एक अलग लेवल का बैच है टीम ये। एंड नॉर्मली एज आई सेड, आई ऑलवेज रिकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स टू गो फॉर पावर क्वेरी, गो फॉर VBA, एक्सेल। ये सब चीजें कर लोगे ना तो आपको इजी होगा। जैसे कल को पाइथन सीखोगे, कल को कुछ नई चीजें सीखोगे, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा टीम वो सब। ठीक है, चलो टीम, नाउ लेट्स व्हाट विल डू नाउ, लेट्स सी फ्रॉम व्हेन दिस कोर्स विल स्टार्टिंग। तो टीम, दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक है, एज द प्रीवियस बैच वी हैव केप्ट ऑन होल्ड, तो 13 से बैच स्टार्ट होने वाला है, 13। ठीक है, मैं डेट लिख लेता हूँ उसकी, 13 अप्रैल
राइट। 13 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है, सैटरडे। टाइमिंग इसका रहेगा 9 AM, ठीक है, 9 AM इसका टाइमिंग रहेगा और ये चलेगा 9 to 12:30 ये चलने वाला है, बराबर। एंड द ड्यूरेशन विल बी 4 months टीम। इसका 4 months से ऊपर जाएगा, 5 महीने जाता है, हम डॉक्यूमेंट में 4 months लिखते हैं, ठीक है, करीब करीब 5 महीने जाता है इसका ड्यूरेशन। द फीस विल बी टीम 12,000 रुपीज, जो कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, सॉरी 3 इंस्टॉलमेंट्स, 4,000 4,000 4,000। अदरवाइज इफ विल बी पेइंग द फीस यहाँ, और ये बैच 6 तारीख है, 13 तारीख के, यानी 13 तारीख को बैच स्टार्ट होगा, 12 तक आप ये फीस पे कर दोगे वन गो में, तो आपको 10% ऑफ रहेगा, ठीक है। वन गो में हम लोग डिस्काउंट देते हैं 10%। तो यानी अगर आपने फीस कब तक पे कर दी, 13 तक ना, 13 तक नहीं, 13 नहीं बोल रहा हूँ, 13 से पहले पहले 12 तक। इफ विल पे द फीस बाय 12 टीम, ठीक है। अगर ये फीस आपने 12 तारीख तक पे कर दी, 12th March, 12 अप्रैल ना, sorry April, sorry, ठीक है, 12 अप्रैल, देन 10% ऑफ इज एप्लीकेबल। तो मीन्स आपको कितनी फी पे करनी है, फिर आपको सिर्फ आपको पे करनी है इतनी 10,800 रुपीज, 10,800. करेक्ट। तो 10,800 फॉर वन गो। इफ यू वांटेड टू पे पार्शियली यू कैन डू 4,000 4,000, लेकिन अपना पहला इंस्टॉलमेंट है 12 तक पे कर देना, ताकि आपको रजिस्टर कर लेंगे हम लोग इस कोर्स में, ठीक है। सो 13 द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13 सैटरडे 9 AM to 12:30, 4 months का बैच रहेगा और ये फीस रहेगी, बराबर। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे, ये डिटेल्स क्लियर है होपफुली सभी को, कोई डाउट टीम यहाँ पे? नहीं, ना, clear. एंड यू हैव ऑलरेडी, आई थिंक यू ऑल आर AFC के स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये पेमेंट डिटेल्स रहेंगे पहले से। तो ये रजा सर का गूगल Yes, पे नंबर है, तो आप इसमें पे करके अपना नाम और मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ठीक है। तो मुझे कैसे भेजोगे आप, ये नंबर, ये स्क्रीनशॉट, ये नंबर, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो टीम, आप एक सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये होपफुली है ही सबके पास, और नहीं भी है तो आपको रजा सर से मिल जाएगा। एंड टेक दिस ऑल्सो, दिस इज माई नंबर टीम। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप इसमें मुझे कॉल कर सकते हो। ओके राज, एनीथिंग, एनी डाउट, जस्ट कॉल मी एंड आई विल बी देयर। Sir, any weekday sessions? अभी वीकडे के अभी नहीं आ रहे हैं, किसको चाहिए वीकडे? Raj. ये राज, वीकडे सेशंस अभी नहीं आ रहे हैं, अभी सैटरडे वाला ही सेशन है। वीकडे क्या होता है राज, बहुत स्टूडेंट्स ना कम होते हैं एक्चुअली। अच्छा, okay. तो आपका राज क्या है, मतलब शिफ्ट टाइमिंग प्रॉब्लम कर रही है क्या सैटरडे को? No, sir. Actually, I have one business, so I'll occupy with that on Saturdays and Sunday. So in weekdays, I'll go to office. So in the morning, if it is possible, I will join in the morning sessions in weekdays. So that's the problem. अच्छा, तो ये तो राज अभी वीकडेज वाला नहीं है, दिस बैच इज फॉर सैटरडे 9 to 12:30, तो सैटरडे का टाइम है इसका। Yeah, sir. But okay, we'll think about it. हाँ, ये आप सोचो अपना बिजनेस के साथ, अगर मैनेज होता है तो आप ज्वाइन कर लो, अदरवाइज आप फ्यूचर में कोई बैच आएगा तो देख Okay, sure. आप देख सकते, डेफिनेटली फ्यूचर में अगर लग रहा Sir, है। yeah. Will you provide the recordings for this? राज, एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स वी आर नॉट प्रोवाइडिंग, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रियल टाइम ना लोगों से प्रैक्टिस करवाते हैं राज। तो रिकॉर्डिंग्स के लिए ये इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग्स नहीं देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स का ना कोई मतलब नहीं होता है राज। वो होता क्या है, पढ़ी रहते हैं और यहाँ वहाँ बढ़ते रहते हैं। और इतना अच्छा कंटेंट है वो सनी सभी को मैं बता रहा हूँ, AFC के इसका कंटेंट आपको पता होगा। हम रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं, हम रियल टाइम प्रैक्टिस कराते हैं, और वो लोग काफी इफेक्टिव होते हैं वो स्टूडेंट्स। And the recording is not provided because Raj, I am a student of AFC, yes, and I know I've done the Power BI course, and I find it very useful by not having the recording, because the recording, what it does, it makes us lethargic, and we think that we will be seeing and doing something, or what is happening, that we used to miss the classes, and then we can see in the back of the mind we have that the recording will be there where we can see and go through the recordings and then we can learn. But practically it's not possible. करेक्ट, तो ये होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो सनिया। वी गो टू अवर कंफर्ट लेवल दैट वी हैव द रिकॉर्डिंग, एंड लाइक दिस मेनी थिंग इज इन यूट्यूब, राइट, बट
हार्डली वी आर सीइंग ऑल दैट थिंग, राइट? कुछ एक आध वीडियो देख लिया और फिर Correct. उसके बाद बोर हो जाते हैं हम लोग, फिर कुछ और एंटरटेनमेंट में चले जाते हैं, बॉलीवुड में चले जाते हैं, करेक्ट? Correct. तो रिकॉर्डिंग पे मत जाओ, रियल टाइम चीजें देखो, और रियल टाइम संडे जो सैटरडे का मॉर्निंग टाइम होगा वो करो। इफ यू डोंट हैव टाइम इन द मॉर्निंग, सैटरडे का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप ये अपना बैच अभी ज्वाइन मत करो, आप अपने हिसाब से अपना कन्वीनियंट टाइम में जो भी बैच आएगा वो करो, ठीक है? Is there any option, sir? Is there any option? So, like in weekdays, batches will be started. Raj, currently it is not starting, but maybe in future it can start, Raj. I have conducted, Okay. yeah, I have conducted weekday batches also in the past. 2 years back, I have conducted one batch, a weekday batch. Mm-hmm. But right now, I can see in the next 2-3 months, it is not there. Okay. 2-3 months के लिए तो नहीं. But What is the you are batch telling size? continuously sorry for interruption. So you're continuously telling the 9 to till 12:30, right? So 3.5 hours. So if we stay at system 3.5 hours, it is possible to learn this. So might be I'll forget some uh, things also, right? So continuously if I do this, So, so is there any no, Raj, what will happen? So it is like AFCK's technique. You already know that it will happen like a school days only. Okay. So what I'll do, okay. I'll give you the best Mm-hmm. possible notes so that you can see the Okay. notes. And Okay. while practicing, you'll not have to see the large videos. Only the notes Okay. wherever you are stucking or wherever the important point. So I'll put a clear point for you, clear note for you. Just see that note only. Okay. Nothing else is required. And also, Raj, I'm available in the next class. If you have any doubt, just note it. So we will just solve those examples first, and we will do the recap first. Actually, last class examples recap हम देखेंगे, then we will solve the other examples. Like this, it will happen. Okay, so Okay, sorry. every class will be having recap, or maybe Mm-hmm. live session also. Any example at any moment you can ask me, Raj. Any example at any moment. It is not like And if I Hmm. sorry, if I miss any class, like if I miss any Saturday class, so what should I do, sir? So in How, recap, how could I cover yeah, that? in recap you can do that example. Otherwise, tell me that Pankaj, I have missed this example. So I will pick one example for you every Saturday. Okay, recap will Mm-hmm. definitely happen. Rajkumar, recap will definitely happen. Okay, every week that 15-20 minutes recap will happen. But you wanted to see Mm-hmm. detail, so tell me, Pankaj, just give me one example. One example. Tell me explicitly. Means explain it. मैं वहाँ पे Mm-hmm. recap में भी तो करने ही वाला हूँ. But again, the one example we will cover, one example, two example we'll cover in every Saturday. So, but it has to come from you, Raj, because you are not Yes. doing that example. तो Yeah. आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा, then I'll do it. ठीक है? You Okay. all are welcome at any moment in the class. आप कभी भी पूछो, कभी भी कुछ भी पूछो, अपना जो भी डाउट है क्लियर करो. So that is Yeah, the understanding. the benefit. Duration is very lengthy, no, sir. 4 months in the sense it's almost 4 months, right? Raj, So, Raj, feel less, very less when you join this, right? So many things we have to cover, and this 4 months is less actually. Okay, okay. yeah, definitely means you're targeting about that business thing, and you're thinking, right? So that is the reason you are saying this is lengthy. Otherwise, just trust me. This is a 4 month is not that much. It is very short time for such a wonderful course. Definitely, it is a short time. तो राज प्रॉब्लम नहीं कोई को, लेकिन अगर आप एडजस्ट कर पाओगे तो इट विल बी डेफिनेटली अ वेरी गुड थिंग फॉर योर स्किल सेट फॉर योर Yeah. करियर फॉर योर स्किल सेट. Yeah. Yes, sir. Correct. ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ वहाँ मैनेज करना पड़ेगा, बट आई जस्ट दिस आर माय वर्ड्स टू यू. दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल बुक्स हियर इन एमसीक्यूज. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, मुझे बहुत पसंद है. मुझे और रजा सर को बहुत चीजें पसंद है फॉलो. तो आप देखोगे वहाँ पे पावर क्वेरी के बैचेस आप दोनों के रहते हैं. ठीक है, तो ये Sure. बहुत Sure, sir. सही बैचेस है. Sure, sir. Okay, now let's cover this. So you can take the print screen. The print screen you can take. और यहाँ पे पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट है. तो ओके टीम, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेमो. दीज आर अवर नंबर, और ये हमारा जो बैच स्टार्ट होगा बराबर 13 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है. नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे 9 AM to 12:30.
ठीक है, टू ऐड एक्स्ट्रा स्टूडेंट टीम वी हैव टेकन दिस डिसीजन, द ऑलरेडी रनिंग बैच को हमने स्टॉप किया और इसको मर्ज कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो आप जल्दी से अपना एनरोलमेंट कर लो और फिर आप उस बैच में एंट्री कर लो। Sure, sure, sure. Questions? Thank you. One. Sunny is clear. Raj, any question? Rajiv, any question? Just one question. हाँ बोलो ना। बैच साइज क्या रहेगा? सनी, क्लास का साइज अभी तो देखो उस वाले बैच में ना करीब 8-9 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट मान के चलो। तो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5-6 स्टूडेंट और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 16 तक का रहेगा, 15-16। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये अगर बैच साइज कम होता है तो क्वेरीज हम लोग अच्छे से फ्रीली पूछ सकते हैं, क्योंकि सबको तो सनी किसी का ग्रास्पिंग लेवल ज्यादा होता है ना और किसी का कम होता है, तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। सनी अभी वो जैसा रहेगा फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा अपने को। अभी बड़े बड़े बैचेस भी हम लोग चलाते ही हैं, तो हम लोग सारे स्टूडेंट्स को देख के चलते हैं सनी। थोड़ा सा आपको हो सकता है जो बहुत ही स्लो है उसमें थोड़ा सा हमें लग जाए, लेकिन हम उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, है ना। उसको भी लेके चलना पड़ेगा अपने को। अब उसको ऐसा फील ना आए कि यार मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर किसी को एक्सेल ही नहीं आता बिल्कुल, तो फिर हम उसको रिकमेंड करेंगे आप इस बैच में मत आओ। श्योर। कि अगर किसी को आता ही नहीं है, कुछ एक्सेल खोलना ही नहीं आता, तो वो इस बैच के लिए फिट नहीं है ना वो। हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसको फिल्टर लगाना नहीं आता, तो हम उसको बोलेंगे भाई कुछ नहीं, हमें नहीं चाहिए पैसे, पहले आप एक्सेल सीख के आओ, क्योंकि यहाँ पे आप हमें परेशान करने वाले हो फिर। ठीक है, तो हम उसको डेफिनेटली, मैं अपनी तरफ से उसको बोल दूंगा कि आप इस बैच के लिए फिट नहीं होगे, आप उसमें चले जाओ, पहले एक्सेल सीख लो, एक्सेल कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, वो सारी चीजें सीख के आओ। करेक्ट। तो वो सब बहुत ध्यान देंगे सनी, क्योंकि अभी हमें टाइमिंग भी मीट करना है ना, 4 मंथ्स 5 मंथ्स का टाइमिंग भी मीट करना। करेक्ट। तो डेफिनेटली टीम, आई विल जस्ट से वन ऑफ द वेरी वंडरफुल बैच पावर क्वेरी, अच्छे से सीखो और अच्छी चीजें एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ टीम, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग ना टीम आप सबको आ जाएगी, आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। श्योर। ठीक है, अगर फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करोगे तो उसमें स्ट्रेंथ मिल जाएगा ना अपने को, फिर स्टार्ट होने में और मजा आएगा उसको। Okay. Team, just give me 1 minute, I'm just stopping it.